हेलो एवरीवन, मैं टीएस धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। प्रीवियस लेक्चर में जहां तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। लेट्स सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल plate capacitor, it consists with two parallel conducting plates having equal and opposite charges. It consists with two parallel conducting plates having equal and opposite charges. तो देखिए बेटा, two conducting plates are arranged parallel to each other. Two conducting plates are arranged parallel to each other and they have equal and opposite charges called parallel plate capacitor. Again listen to me. आप अपने नोटबुक में किस तरह से नोट करेंगे वो सुनिए आप। It consists with two parallel conducting plates having equal and opposite charges. Next, an arrangement of two conducting plates are parallel to each other having equal and opposite charges is called parallel plate capacitor. Let us consider two conducting plates P1 and P2 are separated by distance small d parallel to each other. Okay, plate P2 is earthed and plate P1 connected to positive charge acquires some positive charge from source. Negative charge appear on closure surface of plate P2 and positive charge appear on further surface of plate P2 due to induction. This positive charge removed to earth. ये चार्ज कहां चला जाएगा बेटा? अर्थ में। एरिया ऑफ ईच प्लेट कैपिटल ए। अगेन एक बार और सुने बेटा, आप एक बार और समझें अच्छे से। इट कंसिस्ट विद two parallel conducting plates having equal and opposite charges. An arrangement of two conducting plates are parallel to each other having equal and opposite charges is called parallel plate capacitor. Let us consider two conducting plates P1 and P2, area of each plate capital A, and they are separated parallel to each other at distance small d. Plate P2 is earthed, plate P2 is earthed, and plate P1 is connected to positive potential of source. In this case, plate P1 acquires some positive charge from source and negative charge appear on further surface of plate P2 and negative charge appear on closure surface. Sorry बच्चों, मैंने further बोल दिया था पहले। Negative charge appear on closure surface of P2 and positive charge appear on further surface of P2 due to induction. This positive charge further surface पर जो positive charge है is removed to earth. तो देखिए बेटा, आपको कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए पोटेंशियल फाइंड करना होगा और कंडक्टिंग प्लेट्स के लिए हम डायरेक्टली पोटेंशियल फाइंड करना आपको हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो पहले हम EFI फाइंड करेंगे ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट्स, फिर बाय यूज ऑफ रिलेशन बिटवीन EFI एंड पोटेंशियल उससे पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो EFI at a point between plates इक्वल टू क्या होगा बेटा? सिग्मा अपॉन
epsilon naught. Then electric potential, relation between electric potential equal to V upon D. So V is equal to V is equal, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे V is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D. दैट्स क्लियर. अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इक्वल टू Q अपॉन V. पोटेंशियल आपने फाइंड कर लिया बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D. सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो हम चार्ज को भी सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए. तो चार्ज का वैल्यू रखिए सिग्मा ए, पोटेंशियल का वैल्यू रखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू. तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया बेटा. तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in presence of vacuum, in presence of vacuum. That's clear. In presence of medium, in presence of medium. अब मीडियम के प्रेजेंस में आपको क्या बता रखा है? एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर और के आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम. ओके बेटा. तो Cm एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी और m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी. नंबर थर्ड, वेयर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम. ओके बेटा. अब देखिए एफटीपी, फाइनल टच पॉइंट्स. फाइनल टच पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम m is equal to epsilon naught k upon d. In presence of medium, in presence of vacuum, epsilon naught a upon d. From equation first and second आप देख सकते हैं m is equal to kc. दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट आ गया बेटा? Cm is equal to kc means that electrical capacitance of parallel plate capacitor in presence of medium is k times of electrical capacitance in presence of vacuum. In presence of vacuum means medium के presence में कैपेसिटी इंक्रीज होगा. कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? k टाइम्स इंक्रीज होगा. ओके बेटा. ओके. आप लेट हो गए आज, एक बार रिवाइज कर लें बेटा. बार रिवाइज कर लीजिए इसको अच्छे से. नेक्स्ट देखिए सेकंड स्लाइड, नोटिस करें. अब देखिए बेटा, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड. देखिए ए, फर्स्ट पॉइंट एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, एप्सिलॉन आर और के नेचर ऑफ मीडियम. द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा बेटा? एरिया ऑफ ईच प्लेट, सेकंड पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, एप्सिलॉन आर, नेचर ऑफ मीडियम. दैट्स क्लियर. देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया हुआ है, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया ऑफ ईच प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, नेचर ऑफ मीडियम. दैट्स क्लियर. एफटीपी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, अगेन एक्सप्लेन कर देते हैं. इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी. इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड m is equal to kc. Electrical capacitance of parallel plate capacitor in presence of medium is increased k times of electrical capacitance in presence of
वैक्यूम। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दैट्स क्लियर बेटा। तो आप देख सकते हैं, देखिए बच्चों, let us consider a parallel plate capacitor, area of each plate capital A and distance between plates small d। अर्थ कर दिया बेटा, प्लेट P1 कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ सोर्स, यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। क्लोजर सरफेस पर ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज आएगा, फर्दर पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो कहाँ रिमूव हो जाएगा, अर्थ में। दैट्स क्लियर। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, a dielectric slab of thickness T and dielectric constant epsilon r is equal to K is partially placed between plates of capacitor। That's clear. Again listen to me, let us consider a parallel plate capacitor, area of each plate capital A and distance between plates small d, a dielectric slab of thickness small t, dielectric constant epsilon r is equal to K is partially placed between plates of capacitor। तो अब देखिए बेटा, इस कंडीशन में बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, प्लेट्स के बिटवीन टू रीजन्स हो गए, सम पार्ट में तो मीडियम है और रिमेनिंग पार्ट में क्या हो गया, एयर हो गया। तो हमें कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए पोटेंशियल फाइंड करना है और पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इंडिविजुअली एयर पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। फिर मीडियम पार्ट के लिए EFI फाइंड करेंगे, EFI से पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। दैट्स क्लियर। तो आप देख सकते हैं बेटा, थिकनेस ऑफ एयर रीजन पार्ट कह सकते हैं। देखो T, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस कितना है बेटा, T, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर स्मॉल d, तो D पार्ट में तो मीडियम हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट D माइनस टी में एयर ही तो रहेगा। थिकनेस ऑफ मीडियम रीजन पार्ट क्या हो गया बेटा, T। ओके, तो अब एयर पार्ट में EFI फाइंड करेंगे, उससे पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। मीडियम पार्ट में EFI फाइंड करेंगे, उससे पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। EFI at a point between plates of capacitor in air part। एयर पार्ट में देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 to E1 थिकनेस ऑफ एयर पार्ट माइनस टी, V इक्वल टू ED से, तो D की जगह यहाँ क्या आएगा, थिकनेस ऑफ एयर पार्ट D माइनस टी। हाँ बेटा, तो V1 क्या हुआ बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस टी। दैट्स क्लियर। ये एयर पार्ट के लिए हो गया बेटा। इसी तरह से हम मीडियम पार्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्ट में फाइंड करेंगे। EFI at a point between plates in medium part
तो मीडियम पार्ट के लिए आपको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है कि जहां एप्सिलॉन नॉट होता है उसी के साथ इसका मीडियम आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर आ गया भाई। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट V2, E2 थिकनेस ऑफ मीडियम पार्ट T आ गया, दैट्स क्लियर। अब E2 का वैल्यू यहां पुट कर देंगे बेटा, तो आपका V2 क्या हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू T। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इनका रिजल्टेंट एल्जेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा ना भैया। तो V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस T प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू T। आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाइनली कॉमन ले सकते हैं भैया, माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। इक्वेशन थर्ड, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा, C इक्वल टू Q अपॉन V। पोटेंशियल आपने फाइंड कर ही लिया, पोटेंशियल इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी में। तो यू नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो Q इक्वल टू सिग्मा A पोटेंशियल की वैल्यू रखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया भाई, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को K से भी डिनोट कर सकते हैं, और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A माइनस T प्लस T अपॉन K, तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। गॉट इट। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, एक बार इसको और रिवाइज कर लीजिए आप। ओके नोट कर लिया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड को देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा। तो देखिए एफटीपी में आप क्या रख सकते हैं बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब एप्सिलॉन नॉट A माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह मेटेलिक स्लैब रखा है, क्या रखा है, मेटेलिक स्लैब, तो मेटेलिक स्लैब के लिए आप क्या करेंगे भाई, कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है मेटल के लिए, इनफाइनाइट। तो फॉर मेटेलिक स्लैब यू नो दैट मेटल्स के लिए के एप्सिलॉन आर क्या होगा भैया, फाइनाइट। T इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A T माइनस T प्लस T अपॉन फाइनाइट। 1 बाई इनफाइनाइट क्या होगा बेटा, 0 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन माइनस T प्लस 0। तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ सकता है ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। दैट्स क्लियर। ओके, फाइनल टच पॉइंट्स में ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। अगर मेटेलिक स्लैब है तो मेटेलिक स्लैब के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर और के इक्वल टू इनफाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे। तो फॉर मेटेलिक स्लैब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T व्हेन अ मेटेलिक स्लैब पार्शियली फिल्ड और प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, T इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। दैट्स क्लियर। अब देखिए इसी टॉपिक को हम ड्राइव करके भी बता सकते हैं, ड्राइव कैसे करेंगे वो देखें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
with metallic slab, with metallic slab. तो देखिए, let us consider a parallel plate capacitor, area of each plate capital A, area of each plate capital A, and distance between plates small d. Plate P2 is earthed. Plate P1 connected to positive potential of source, then acquire some positive charge. Negative charge appear on closure surface of plate P2. Positive charge appear on further surface of P2. This positive charge removed to earth. Again listen to me. Let us consider a parallel plate capacitor. Area of each plate capital A and distance between plates small d. Plate P2 is earthed. Plate P1 is connected to positive potential. Then acquire some positive charge. Negative charge appear on closure surface of P2 and positive charge appear on further surface of P2 due to induction. Positive charge on further surface of plate P2 is removed to earth. A metallic slab of thickness small t, dielectric constant infinite, is partially placed between plates of कैपेसिटर. तो अब इस कंडीशन में भी आप देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, तो बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दो रीजन, टू पार्ट हो जाएंगे. सम पार्ट में तो एयर है, रिमेनिंग पार्ट में मीडियम है. तो दोनों पार्ट्स के लिए, एयर पार्ट के लिए और मीडियम पार्ट के लिए इंडिविजुअली EFI फाइंड करेंगे और रिलेशन बिटवीन EFI एंड पोटेंशियल से पोटेंशियल फाइंड करेंगे, नेट पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका रिजल्ट फाइनली कैपेसिटेंस आ जाएगा ना भाई. तो आप देखिए थिकनेस ऑफ एयर रीजन पार्ट क्या हो गया बेटा, d माइनस टी. डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना है, d. जो आपका मेटेलिक स्लैब है उसका थिकनेस कितना है, t. तो एयर पार्ट का थिकनेस क्या हुआ, d माइनस टी. थिकनेस ऑफ पार्ट क्या हो गया बेटा, टी. EFI बिटवीन प्लेट्स इन एयर रीजन क्या हुआ भैया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे हम. देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एयर पार्ट 1 इक्वल टू E1 थिकनेस ऑफ एयर पार्ट d माइनस टी 1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस टी. दैट्स क्लियर. क्या आ गया देख. अब देखिए EFI at a point between plates in medium region टू क्या हुआ बेटा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन आर मेटल के लिए एप्सिलॉन आर क्या हो गया भैया, इनफाइनाइट. वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू इनफाइनाइट. टू क्या हुआ भैया, 0. Then electric potential in medium part V2 to thickness of medium क्या है आपका 0 इंटू टी. तो V2 क्या हो गया भैया, 0. दैट्स क्लियर. तो पोटेंशियल इन मीडियम क्या हो गया, 0 हो गया. ओके बेटा. अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2 क्या हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस टी. क्या हो गया बेटा, 0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस टी. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या हुआ बेटा, इक्वल टू Q अपॉन V. Q पोटेंशियल सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्म में बेटा, तो चार्ज को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A, तो Q इक्वल टू सिग्मा है.
सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस टी। ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये आपका रिजल्ट आ गया भाई। कैपेसिटेंस अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक स्लैब। दैट्स क्लियर। एक बार आप इसको रिवाइज कर लें भैया, एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट देखिए, रिवाइज कीजिए बेटा। अब देखिए, इससे नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कंप्लीट रीजन में, कंप्लीट पार्ट में एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डिफरेंट मीडियम्स की प्लेट रख दी है। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, यानी बिटवीन प्लेट्स डिफरेंट मीडियम के स्लैब्स रखे हैं जिनकी थिकनेस डिफरेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम डिफरेंट है, कंप्लीट रीजन में पूरे पार्ट में रख दिए हैं, वहां एयर पार्ट नहीं बचा हुआ अब। ओके, आप देख सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया ऑफ ईच प्लेट कैपिटल ए एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स स्मॉल डी। प्लेट P2 is earthed. Plate P1 is connected to positive potential, then acquire some positive charge. Negative charge appear on closure surface of plate P2 and positive charge appear on further surface of P2. This positive charge removed to earth. Again listen to me. Let us consider a parallel plate capacitor. Area of each plate capital A. Distance between plates small d. Plate P2 earthed. Plate P1 is connected to positive potential of source. Then plate P1 acquires some positive charge from source. Negative charge appear on closure surface of P2. Positive charge appear on further surface of P2 due to induction. Positive charge on further surface of plate P2 is removed to earth. And dielectric slabs of thickness देखिए बेटा, ऑफ थिकनेस T1 T3 Tn and dielectric constant of medium epsilon R1, epsilon R2, epsilon R3, epsilon R placed between plates of capacitor. Region between plates of capacitor, complete region, whole part में आपने different dielectric slabs जिनकी thickness T1, T2, T3 up to Tn, dielectric constant epsilon R1, epsilon R2, epsilon R3 up to epsilon R रखे गए हैं। अब देखो बेटा, कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए EFI फाइंड करना है। तो हम पहले EFI फाइंड करेंगे। EFI at a point between plates in region of epsilon R1, फर्स्ट मीडियम में ले लिया E1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा भाई, एप्सिलॉन R1। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 इक्वल टू E1, इट्स थिकनेस, फर्स्ट मीडियम की थिकनेस कितनी है बेटा, T1, क्या है ये T1, और V1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R1 इंटू T1। सिमिलरली, अब तो हम सिमिलरली लिख देंगे बेटा, सिमिलरली टू क्या होगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R2 इंटू 2। 3 क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R3 इंटू T3 अप टू Vn क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R3 इंटू, सॉरी
एन ले रहे हैं ना अपन, वी एन, एप्सिलॉन आर एन इंटू टी एन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये सभी के लिए पोटेंशियल, सारे मीडियम्स के लिए हमने इंडिविजुअली पोटेंशियल फाइंड कर लिया। तो नेट पोटेंशियल, यू नो दैट पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V3 अप टू Vn। सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन एप्सिलॉन R1, 2 अपॉन एप्सिलॉन R2, 3 अपॉन एप्सिलॉन R3 अप टू Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। दैट्स क्लियर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आपका क्या होगा, इक्वल टू Q अपॉन V। चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेटा, इक्वल टू सिग्मा ए, इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, 2 अपॉन एप्सिलॉन R2, 3 अपॉन एप्सिलॉन R3 अप टू n अपॉन एप्सिलॉन Rn। आप देख सकते हैं सिग्मा से सिग्मा कैंसिल होगा बेटा, इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन R1, 2 अपॉन एप्सिलॉन R2, 3 अपॉन एप्सिलॉन R3 अप टू n अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये आपका रिजल्ट आ गया। चाहो तो एप्सिलॉन R को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, K से, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 1 अपॉन K1, 2 अपॉन K2, 3 अपॉन K3 अप टू n अपॉन n। ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ये आपका रिजल्ट आ गया भैया। गॉट इट बेटा। ओके बच्चों, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया ना बेटा, गॉट इट। आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए बेटा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।